And dear students, today we will discuss about another unit of class 12th botany. In this video, we will discuss about the embryology part. Now, the first main topic of the embryology part is the structure of flower. First of all, in case of angiosperm, the main plant body is sporophyte. In case of angiosperm, the main plant body is sporophyte. Now, this sporophyte undergoes some hormonal changes. The sporophyte undergoes some hormonal changes as well as morphological changes and results into the formation of a flower. Now, how we discuss this unit? We discuss this unit in three main steps. First is the pre-fertilization changes, and the second most important step is the fertilization changes. In this step, we will discuss about the fertilization, double fertilizations, and after that, we will discuss about the post-fertilization changes. Now, first of all, you know, uh, when the bird, when the bud of a flower is developed into a flower, the process is known as anthesis. So, this is the most important term. What is anthesis? Anthesis is the process of opening flower bud into a different floral parts is known as anthesis. Now, this flower, we can say that the flower is a modified shoot and it is the reproductive part of a plant. Now, the stem has the stem has nodes and internodes. In nodes, uh, from the region of node arise leaf as well as flower. Now, this is the shoot apical meristem. This shoot apical meristem has a leaf primordia. This leaf primordia develop into leaf. But due to hormonal as well as morphological changes, the entire flower, the entire flower is developed into the basal part that is known as the thalamus. The thalamus, from this thalamus, we develop various floral parts. This, what is thalamus? Thalamus is a modified stem. The second most important part of a flower is sepal, and the reproductive unit is calyx. Now, the sepal is green in color, leaf-like structure, hairy, and it helps in protection from dehiscence as well as it helps the main reproductive parts from dehiscence and from mechanical injuries. Now, the second, one more important thing, the sepal is green in color and help in the process of photosynthesis. Now, the second part is petals. Now, the petals are colored. Basically, it contains a colored pigment. For example, anthocyanin, uh, which helps insects to attract, the flower. Now, the third main, the third main step is that is the stamen. The stamen is also known as male reproductive part. It consists of anther as well as filament. The anther is bilobed structures. We will discuss in further videos how this anther look like, what is the structures of anther, and many more things. This is the anther and filament. They are connected through a tissue, and that tissue is known as connective. The fourth important part is the most important part. The fourth important part that is most important part that is the uh, carpel. This carpel consists of stigma, style, and ovary. The stigma is sticky, style may be hollow, semi-solid, solid, and the ovary is a swollen basal part. Uh, this ovary contains ovule. Later, the ovary develops into fruit, and the ovule changes into seed. Now, so basic in this basic unit we will discuss about हमने क्या इसमें सीखा. The flower, it contains five major part. The first part is thalamus. This thalamus is a modified. This thalamus
this thalamus is a modified stem. Now the second part is a calyx. This calyx protect flower from a bud stage, and the third one is that is corolla. This corolla attract pollinators. That means they attract pollinators to pollinate the flower. These parts are basically the non-essential. These parts are basically they are non-essential, or we can say that they are accessories. Now the second part, the most important part, that is the reproductive or essential part. It contains androecium. Androecium is considered as male reproductive part, and gynoecium is considered as female reproductive part. These two main important part. These are the two main important parts of the flower. Now, let me discuss the structure of male reproductive part. The male reproductive part of a flower is known as androecium, और this androecium is also known as, इसे हम stamen के नाम से भी कहते हैं. When the stamen is infertile, the term is used for that staminode. Staminode क्या होता है? जब stamen जो है वो infertile होगा, उसे हम staminode कहते हैं. Now, the structure of stamen is basically differentiated into three main parts. The first part is anther. The second most important part is, the first part is anther. The second most part is connective, and the third part is filament. Anther, connective, and filament. Now, when we look about the structures of anther, this is the anther part. This anther is fertile. This is the basal part, thalamus. From the thalamus, the stamen proximal end is joint. The distal end is joined towards the anther, whereas the proximal end is joined towards the thalamus. The connecting link between the distal and proximal end is the filament, and this filament is sterile. Now, when we look about the structure of anther, this anther is bilobe structures. The anther is बायोलोब स्ट्रक्चर. अगर हम इसको देखेंगे कि एक एंथर में कितनी लोब होती हैं, तो एक एंथर में होती हैं दो लोब. ये बायोलोब होता है, और दो लोब में कितने थीका होते हैं? ये एक थीका आ गया और ये दूसरा थीका आ गया. इसमें दो थीका होते हैं. हर लोब में दो थीका होंगे, तो हम इस ऐसे वाले एंथर को कहते हैं डाईथीकस. तो ऐसे डाईथीकस, और टोटल थीका कितने होते हैं इसमें? तो टोटल थीका होते हैं इसमें चार. टोटल में कितने थीका होते हैं? चार थीका होते हैं. और इस चार थीका में चार स्पोरेंजिया होते हैं. तो जब चार स्पोरेंजिया एक एंथर में होते हैं, तो उस किस्म के एंथर को हम कहते हैं टेट्रास्पोरेंजिनेट. उसे हम क्या कहते हैं? टेट्रास्पोरेंजिनेट. यहाँ पे डायग्राम को आप विजुलाइज करने की कोशिश करिए कि ये हमारे पास एक कॉमन एग्जांपल है. हमने इसका एलएस लिया है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन लिया है एंथर का, और इस लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में आप कैसे क्लियरली डिफरेंशिएट कर सकते हो कि इसमें चार माइक्रोस्पोरेंजिया हैं. और ये माइक्रोस्पोरेंजिया, इस वाली कंडीशन को हम कहते हैं कि ये माइक्रोस्पोरेंजिया जो है दे आर ऑल टेट्रास्पोरेंजिनेट. मोनोस्पोरेंजिनेट भी हो सकता है, डाइस्पोरेंजिनेट भी हो सकता है, ट्राई हो सकता है, टेट्रा हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द स्पीशीज. आप देखिए, अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं. अगर हम बात करेंगे कॉटन बिलोंग्स किस फैमिली से करता है? कॉटन की फैमिली जो है वो मालवेसी है. वोल्फिया बिलोंग करता है एरिकेसी फैमिली से, और मोरेंजिया बिलोंग करता है मोरेंजिएसी फैमिली से. इस केस में क्या होता है? इस केस में होती है एक लोब. इस एक लोब में एक थीकस होता है, और इस एक थीका में दो माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं. तो हम ऐसी कंडीशन को कह सकते हैं कि जब एक एंथर में एक लोब और दो थीकस होगा, तो उसे हम कहते हैं मोनोथीकस. एक थीका है तो एक थीका है तो मोनोथीकस. दो स्पोरेंजिया है तो बाइस्पोरेंजिनेट. तो मोनोथीकस बाइस्पोरेंजिनेट कंडीशन इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं. एक प्लांट है सेंटिलेसी फैमिली का, एरिसयूथोबियम. ये एरिसयूथोबियम में एक लोब एक थीका होता है. अगर एक लोब एक थीका है तो माइक्रोस्पोरेंजिया भी एक ही होगा. तो इससे हम कहते हैं एक थीकस के लिए मोनोथीकस, और एक स्पोरेंजिनेट है तो मोनोस्पोरेंजिनेट कंडीशन हम इसको कह सकते हैं. क्लियर है यहाँ तक? होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा. अब हम यहाँ से आगे ना, अब हम बात करेंगे कि माइक्रोस्पोरेंजिया जो है, ये माइक्रोस्पोरेंजिया क्या डेवलप करता है? ये माइक्रोस्पोरेंजिया जो है ये डेवलप करता है पोलन सैक. अब देखिए, पोलन सैक क्या है? ये पोलन सैक इस कैविटी है. इस पोलन सैक के अंदर क्या होंगे? इस पोलन सैक के अंदर होंगे हमारे पास पोलन ग्रेन. क्या होंगे? पोलन ग्रेन. और आपको पता ही है कि पोलन ग्रेन से ही आगे फर्दर डेवलपमेंट होती है. अब देखिए,
अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास एंथर है, इस एंथर को ऐसे कट करेंगे, इसकी हम टीएस लेंगे। जब हम इसकी टीएस लेते हैं तो सबसे पहले इसकी टीएस में टीएस काटेंगे तो इसमें क्या क्या होता है। सबसे पहले होता है इस टीएस में सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होती है जिसका नाम है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस फॉलोड बाय 2 to 3 लेयर होती है इसमें एंडोथीशियम। एंडोथीशियम के बाद 2 to 3 लेयर होती है मिडल लेयर। मिडल लेयर के बाद होता है इसमें इनर मोस्ट लेयर जो है जिसे हम कहते हैं टेपिटियम। ये टेपिटियम जो है ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। आप देखिए उसके बाद हम क्या देखेंगे, इस टेपिटियम के अंदर क्या होता है, इसमें एक डेवलप होती है, एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रू डेवलप होती है। ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रू क्या है, ये दो लोब्स को आपस में सेपरेट करता है। इस टेपिटियम के बाद अंदर में क्या होता है, एक होमोजीनियस मास ऑफ मेरिस्मेटिक सेल्स होते हैं। ये जो होमोजीनियस मास है मेरिस्मेटिक सेल्स का, इस होमोजीनियस मास ऑफ मेरिस्मेटिक सेल को हम कहते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। और ये माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है ये डिप्लॉयड होता है, या इसे हम इस माइक्रोस्पोर मदर सेल को हम पोलन मदर सेल भी कह सकते हैं। और ये जो पोलन मदर सेल्स है ये हमने बताया डिप्लॉयड होता है। ये पोलन मदर सेल जो है ये माइक्रोस्पोर टेट्राड की फॉर्म में होता है, और इस टेट्राड को होल्ड कौन के रखता है, एक एंजाइम इसे होल्ड करके रखता है जिसका नाम है कैलोस। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नाउ इन शॉर्ट हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि आउटर मोस्ट कवरिंग जो है, आउटर मोस्ट कवरिंग जो है एंथर की है वो है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बाद आता है एंडोथीशियम। एंडोथीशियम के बाद आता है 2 to 3 लेयर, 2 to 3 मिडल लेयर्स। मिडल लेयर्स के बाद आती है इनर मोस्ट लेयर जिसे हम टेपिटियम कहते हैं। इस टेपिटियम के अंदर क्या होता है, होमोजीनियस मास ऑफ मेरिस्मेटिक सेल्स होता है। ये होमोजीनियस मास ऑफ मेरिस्मेटिक सेल्स ही बिहेव करते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह, या हम इन्हें कह सकते हैं कि ये क्या है, पोलन मदर सेल है। और उसके बाद इन पोलन मदर सेल में म्योसिस हो जाती है। आपको पता है म्योसिस एक रिडक्शनल डिवीजन है, क्रोमोसोम डिप्लॉयड से हैप्लॉयड हो जाता है, तो माइक्रोस्पोर टेट्राड बनेगा, और इन टेट्राड को होल्ड करके कौन रखता है, इन्हें कैलोस नाम का एक एंजाइम होल्ड करके रखता है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए, अब ये डेवलपमेंट ऑफ एंथर, इस एंथर की कैसे डेवलपमेंट हुई, अब हम पढ़ेंगे कि ये एंथर जो है ये कैसे डेवलप हो गया। देखिए हमारे पास एक यंग एंड डेवलपिंग एंथर है, हमारे पास एक यंग एंड डेवलपिंग एंथर है। इस यंग एंड डेवलपिंग एंथर जो है इसमें क्या होता है, ये इसमें आर्किस्पोरियल सेल्स होते हैं। हाइपोडर्मस में आर्किस्पोरियल सेल्स होते हैं। ये जो आर्किस्पोरियल सेल्स है, इस आर्किस्पोरियल सेल्स में पेरिक्लाइनल डिवीजन होती है। देखिए ये हमारे पास कुछ सेल्स हैं, ये सेल्स अगर ऐसे कट करेंगे, ऐसे ग्रो करेंगे, ऐसे डिवाइड करेंगे तो इसे कहते हैं एंटीक्लाइनल डिवीजन। अगर ये ऐसे कट करेंगे, सेंटर में से लॉन्गिट्यूडनली कट करेंगे तो उससे कहते हैं, अगर ये पैरेलल टू परपेंडिकुलर अगर ये कट करेंगे तो उससे कहते हैं पेरिक्लाइनल डिवीजन। आप देखिए इस पेरिक्लाइनल डिवीजन से क्या होता है, इस पेरिक्लाइनल डिवीजन से एक लेयर बनती है आउटर लेयर, दूसरी लेयर बनती है हमारे पास इनर लेयर। आउटर लेयर जो है उसे हम प्राइमरी पैराइटल सेल बनाती है, जो इनर लेयर है वो प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल बनाती है, वो प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल बनाती है। और जो ये प्राइमरी पैराइटल सेल है ये डेवलप होती है एंथर वॉल में, और प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल जो है ये डेवलप होती है माइक्रोस्पोर मदर सेल में। क्लियर है यहाँ तक? नाउ यहाँ तक हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि एंथर वॉल जो है, ये एंथर वॉल जो है ये कितने, ये 4 लेयर्स का बना होता है, जिसमें से जो पहली लेयर हम पढ़ेंगे जिसे हम एपिडर्मिस कहते हैं। याद रखना एपिडर्मिस हमेशा सिंगल लेयर्ड होता है, आउटर मोस्ट लेयर है। और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ एपिडर्मिस इज दैट ये हमें हेल्प करती है प्रोटेक्शन में। नाउ उसके बाद कुछ एक्सेप्शंस हैं। एलेंजम एक प्लांट है, एलेंजम की जो एपिडर्मिस है, एलेंजम की जो एपिडर्मिस है उसमें स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। एलेंजम की जो एपिडर्मिस है उसमें स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। एक और प्लांट है एरिस यूथोबियम। एरिस यूथोबियम का जो एपिडर्मिस है इसमें फाइबर की थिकनिंग होती है, मतलब यहाँ पे फाइबर की डिपोजिशन होगी, और ये फाइबर की डिपोजिशन जो है इसे कहा जाता है एक्सोथीसियम। इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है एक्सोथीसियम। नो एपिडर्मिस के बाद दूसरी लेयर आती है हमारे पास एंडोथीशियम। अब याद है ये जो एंडोथीशियम है, इस एंडोथीशियम का जो मेन रोल है, एंडोथीशियम का मेन रोल जो है वो है डेहिसेंस ऑफ एंथर, और दूसरा प्रोटेक्शन। देखिए एंडोथीशियम जो है एंथर को डेहिसेंस होने से बचाती है, और दूसरा ये प्रोटेक्ट करती है। देखिए ये हमने सेल बनाई एंडोथीशियम की सेल्स, इस एंडोथीशियम की सेल्स में कुछ यू शेप्ड स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं, और इस यू शेप्ड स्ट्रक्चर में अल्फा सेलुलोज की थिकनिंग होती है। और ये अल्फा सेलुलोज की थिकनिंग जो है ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर की होती है,
और ड्यू टू द हाइग्रोस्कोपिक नेचर ये हेल्प करती है इसको डेहिसेंस ऑफ एंथर में, वहां से इसको प्रोटेक्ट करेगी। नाउ द एपिडर्मिस और एंडोथीशियम के बाद आती है हमारे पास मिडल लेयर। ये जो मिडल लेयर है, ये मिडल लेयर 2 to 3 लेयर थिक होती है, मिडल लेयर 2 to 3 लेयर थिक होती है और ये एपिमेरल होती है। अब इस एपिमेरल का क्या मतलब है, जब एंथर मैच्योर्स हो जाता है, जब एंथर मैच्योर्स हो जाता है और ये मिडल लेयर जो है ये ब्रोक हो जाती है। मेन काम क्या है मिडल लेयर का, इसका मेन रोल जो है वो फूड स्टोरेज है, फूड स्टोरेज है। अब कुछ एक्सेप्शन है यहाँ पे, कॉक्सीनिया नाम का एक प्लांट है, रेननकुलस है, होलोप्टीलिया है, लीलम है, इन प्लांट्स में जो है इनमें मिडल लेयर परसिस्टेंट रहती है, इनमें मिडल लेयर जो है वो डेहिसेंस नहीं होती है। एक और प्लांट है ग्लोरिसिया है, इसमें क्या होता है कि एंडोथीशियम जो है इसमें एंडोथीशियम लाइक थिकनिंग इसमें प्रेजेंट हो जाती है मिडल लेयर में। उसके बाद एक और प्लांट है वोल्फिया है, आपको पता होगा ये स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म भी है। इस वोल्फिया में मिडल लेयर ऑल टुगेदर एब्सेंट होता है। उसके बाद दो फैमिलीज आपने याद रखनी है, एक है नाजाडेसी, दूसरी है लेमनिएसी। ये नाजाडेसी और लेमनिएसी में मिडल लेयर एब्सेंट होता है, ठीक है ना। और इन शॉर्ट हम ऐसा कह सकते हैं कि एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडल लेयर, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडल लेयर, इन तीनों का क्या काम है, एक तो प्रोटेक्शन का काम है और दूसरा डेहिसेंस का काम है। तो आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। अब हम यहां से आगे देखिए, अब आगे क्या है, हमने पढ़ा एपिडर्मिस एंड देन एंडोथीशियम और उसके बाद 2 to 3 मिडल लेयर, इन तीनों का क्या काम है, एक तो प्रोटेक्शन का काम है और दूसरा डेहिसेंस का काम है। अब हम देखते हैं टेपिटम को। देखिए ये जो टेपिटियम है, ये टेपिटियम जो है ये हमने बनाया, ये टेपिटियम है, ये क्या है, ये टेपिटियम की लेयर है। इस टेपिटियम के अंदर क्या है, सराउंड्स है, स्पोरोजिनस टिश्यू को ये सराउंड करते हैं। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि टेपिटियम के अंदर क्या है, स्पोरोजिनस मास ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू है जो बिहेव करते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह या पोलन मदर सेल की तरह। आप देखिए ये जो टेपिटियम है, ये टेपिटियम सबसे पहले इनर मोस्ट लेयर है। ये क्या करती है, ये स्पोरोजिनस टिश्यू को सराउंड करके रखती है। आप देखिए स्पोरोजेनिक टिश्यू को सराउंड करके रखती है, इसमें डीएनए कंटेंट भी इंक्रीज होता है। डीएनए कंटेंट इंक्रीज होने के साथ साथ साइटोप्लाज्म भी इसका डेंस होता है, साइटोप्लाज्म डेंस होता है। तो याद रखना कि टेपिटियम, ऐसा क्वेश्चन आता है कि कौन सी ऐसी सेल्स है जो पॉलीप्लॉइड बिहेव करती है या जिसमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस पाए जाते हैं। तो याद रखना टेपिटियम की सेल में एक से ज्यादा न्यूक्लियस पाए जाते हैं, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है और पॉलीप्लॉइड भी होती है। आप देखिए इस टेपिटियम का क्या फंक्शन है, सबसे पहला फंक्शन है इसका, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। सबसे पहला फंक्शन इसका, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है माइक्रोस्पोर मदर सेल को या पोलन मदर सेल को और डेवलपिंग पोलन ग्रेन को। ये क्या प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। आप देखिए अब कुछ इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेक्टर्स हैं टेपिटियम के, वो हम डिस्कस करते हैं। देखिए ये टेपिटियम जो है ये सिक्रीट करती है एक एंजाइम जिसका नाम है कैलेस। ये कैलेस क्या करता है, ये कैलोस को ब्रेक डाउन करता है। उसके बाद इसमें कुछ हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं। इसके अलावा ये स्पोरोपोलिनिन नाम का एक केमिकल रिलीज करती है और इसके साथ साथ उबिश बॉडीज भी ये रिलीज करती है। याद रखना स्पोरोपोलिनिन और उबिश बॉडीज जो है ये एग्जाइन बनाती हैं पोलन ग्रेन्स का। देखिए अब जब हम आगे स्ट्रक्चर पढ़ेंगे पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर, इंटाइन बनाती हैं, एक्साइन बनाती है, एक्साइन जो है सेक्साइन और नेक्साइन में फर्दर डिवाइड है, ये हम अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद याद रखना एक और इंपॉर्टेंट करेक्टर कि ये जो टेपिटियम है ये इसमें ये क्या सिक्रीट करती है, ये पोलन किट सिक्रीट करती है। देखिए ये पोलन किट क्या होता है, ये एक ऑयली लेयर, पोलन किट क्या है, एक ऑयली लेयर डेवलप होती है पोलन ग्रेन्स में। पोलन किट क्या है, ऑयली लेयर डेवलप होती है पोलन ग्रेन में। आप देखना ये जो ऑयली लेयर है ये होती है स्टिकी, ठीक है ना। स्टिकी होने की वजह से ये पॉलिनेटर इसकी तरफ अट्रैक्ट करता है और पोलन किट का कलर जो है वो येलो होता है। स्टिकी ड्यू टू द नेचर ऑफ स्टिकी और येलो कलर होने के बावजूद इसमें क्या होता है कि इंसेक्ट जो है या कोई भी पॉलिनेटर जो है वो इसकी तरफ अट्रैक्ट करता है। आप देखिए याद रखना एप्पल की अगर हम देखेंगे, एप्पल की जो टेपिटम है वो रेड ब्राउन पिगमेंट बनाती है और एनीमून की जो टेपिटम है वो वॉयलेट पिगमेंट बनाती है। क्लियर है यहाँ तक। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ टेपिटम। देखिए सबसे पहले टेपिटियम को डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन और फंक्शन के बेसिस पे। ऑरिजिन के बेसिस पे टेपिटम को क्लासिफाई किया गया है सी टेपिटम और पी टेपिटम पे। देखिए हमने ये बनाया, सबसे आउटर मोस्ट लेयर हमने लिया है एपिडर्मिस, फिर मिडल लेयर एपिडर्मिस, एंडोथीशियम 2 to 3 मिडल लेयर और उसके बाद हमने टेपिटम का ड्रा किया है।
अब ये जो टेपिटम है, यहाँ पे हमने न्यूक्लियस को ड्रा नहीं किया है, क्योंकि हमने यहाँ पे मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन नहीं लाई है, हमने यहाँ पे टाइप्स ऑफ टेपिटम को डिस्कस करने ओरिजिन के आधार पे। देखिए ये दो तरह का है, एक है सी टेपिटम, ये सी टेपिटम जो है ये कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, और दूसरा है पी टेपिटम। हमने पीछे भी डिस्कस किया कि ये प्राइमरी पैराइटल सेल की तरह बिहेव करती है, तो पी टेपिटम जो है वो प्राइमरी पैराइटल सेल बनाती है। आप देखिए, अब याद रखना कि एक प्लांट है जिसका नाम है स्नैपड्रैगन प्लांट। इस स्नैपड्रैगन प्लांट का जो साइंटिफिक नेम है वो है एंटीराइनम मेजस। इस एंटीराइनम मेजस में टेपिटियम जो है वो स्पोरोजीनियस टिश्यू का बना है। क्लियर है यहाँ तक? आप देखो, नेक्स्ट है हमारा ऑन दी बेसिस ऑफ फंक्शन। ऑन दी बेसिस ऑफ फंक्शन जो है, एक होता है एम्बुबाइड, दूसरा होता है ग्लैंडुलर। एम्बुबाइड को हम प्लाज्मोडियल भी कह सकते हैं, और ग्लैंडुलर को हम सेक्रेटरी भी कह सकते हैं। ग्लैंडुलर को हम सेक्रेटरी भी कह सकते हैं, या इसको पार्शल भी कह सकते हैं। अब देखिए, ये हमारे पास टेपिटियम है। अब ये टेपिटियम की वॉल ब्रेक हो जाएगी। टेपिटियम की वॉल ब्रेक होने के बाद जितना अंदर स्पोरोजीनियस मास है वो बाहर आ जाएगा, ठीक है ना, वो डिस्पर्स हो जाएगा। उसके बाद याद रखना कि ऐसा जो है, ये इस शेप का जो टेपिटियम है उसे कहा जाता है प्लाज्मोडियल और एम्बुबाइड, ठीक है ना। और ये जो है ऐसा किस में पाया जाता था, ये प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म जो थे उनमें पाया जाता है। लेकिन आजकल जो एडवांस्ड एंजियोस्पर्म है उनमें क्या होता था, उनमें ये उनमें क्या होता है कि उनमें सेक्रीशन हो जाती है, सिक्रीट करते हैं, सेक्रेटरी या ग्लैंडुलर इसीलिए कहा जाता है कि इसमें सिक्रीशन होती है, और सिक्रीशन होने के बाद जो स्पोरोजिनियस सेल है वो रिलीज हो जाते हैं बाहर, और ये जो है ये एडवांस्ड एंजियोस्पर्म में पाई जाती है, ये एडवांस्ड एंजियोस्पर्म में पाई जाती है। आप देखिए, अब कुछ टर्म्स हैं ये हमने समझनी है। हम फ्लावर को कंप्लीट कब कह सकते हैं? हम फ्लावर को कंप्लीट तब कहेंगे जब उसमें चारों के चारों वरल्स प्रेजेंट होंगे, मतलब स्टेमन चारों के चारों वरल्स प्रेजेंट होंगे, स्टेमन कार्पल के साथ साथ सेपल और पेटल भी प्रेजेंट होंगे। दूसरा आता है हमारा इनकम्प्लीट फ्लावर। दूसरा हमारा इनकम्प्लीट फ्लावर, याद रखना इनकम्प्लीट फ्लावर में कोई एक वरल जो है वो एब्सेंट होगा, या स्टेमन एब्सेंट होगा, या कार्पल एब्सेंट होगा, या कोरोला एब्सेंट होगा, या सेपल्स एब्सेंट होगा। अब देखिए, मेल फ्लावर क्या है? मेल फ्लावर होता है जिसमें सिर्फ एंड्रोशियम हो, उसे मेल फ्लावर कहते हैं। फीमेल फ्लावर है जिसमें सिर्फ गाइनोशियम प्रेजेंट हो, उसे फीमेल फ्लावर कहते हैं। उसके बाद आपने याद रखना है कि इम्परफेक्ट या यूनिसेक्सुअल फ्लावर किसको कहते हैं? इम्परफेक्ट या यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है वो जिसमें सिर्फ एक रिप्रोडक्टिव पार्ट हो। बाइसेक्सुअल फ्लावर किसको कहेंगे? जिसमें एंड्रोशियम भी हो और गाइनोशियम भी हो, उसे बाइसेक्सुअल कहेंगे। उसके बाद मोनोशियस प्लांट क्या होता है? ऐसा प्लांट जिसमें मेल और फीमेल गैमेट जो है एक ही सेम फ्लावर पे होंगे, ठीक है ना, जैसे कैस्टर, मेज एटसेट्रा। दोज प्लांट्स हैव बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर ऑन द सेम प्लांट। डायोसियस क्या होता है? दोज विच हैव डिफरेंट प्लांट्स फॉर डिफरेंट फ्लावर। आप देखिए, मेल फ्लावर के लिए अलग प्लांट होगा और फीमेल फ्लावर के लिए अलग प्लांट होगा। होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। दिस इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ द एम्ब्रियोलॉजी। यहाँ से आगे हम और डिस्कस करेंगे। याद रखना है, इंडियन एम्ब्रियोलॉजी का जो फादर है वो पी महेश्वरी साहब हैं। आगे आगे हम बढ़ेंगे, आगे और चीज़ें डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।